Good evening, everyone, and a very warm welcome to today's webinar. It's a pleasure to have you all with us. As a part of our monthly webinar series, we aim to provide investors with structured insights and actionable perspectives to help navigate today's dynamic markets. Technology, as we know, is at the heart of economic transformation. While global giants like the Max 7 have reshaped industries and investment narratives, India too is witnessing a powerful shift with its own set of emerging technology leaders. These forces are creating new opportunities, redefining competitiveness, and shaping the next decade of growth. We are delighted to have with us Mr. Sandeep Agarwal, co-founder and fund manager at Sovolo Investment Managers, who will share his perspectives on this transformation under the theme The Rise of India's Big Tech. Joining him is Ms. Padmavati Udecha, Head of Research at Sovolo, and Mr. Ariman Iyer, who will add valuable insights to the discussion. Today's session will cover the following key themes: macro snapshot, evolution of the Max 7, rise of India's big tech. If you have any questions during the session, please feel free to drop them in the chat box. We'll take them up during the question and answer segment. With that, I now hand it over to Mr. Sandeep Agarwal to take us through his views. Hi, good evening, everyone, and thanks for taking time out on a Friday evening for this session. We are glad to share our perspective with you all. Today's session is very, very special and it is very close to our heart. After a long time, we have brought in technology in our presentation, and I assume and believe that you will all love it. So we will start with my head of research, Ms. Padmavati, to start giving perspective on how we are doing, what is our thought process, what is macro, micro, and then we will shift gears towards technology. And आज के इस वेबिनार में हम लोग ग्लोबल टेक कंपनी और इंडियन प्लेटफॉर्म्स पे बात करेंगे। और एक बहुत चुभता सवाल हमेशा होता है कि इंडिया बहुत पीछे है। हर रोज ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे रोज हमें कंपेयर किया जाता है। जैसे माँ बाप एक अच्छे बच्चों पढ़ने में बच्चा अच्छा है और एक जो कमजोर है उसको सारा दिन कंपेयर करते हैं, वैसे हर चैनल पे कभी चाइना के साथ कंपेयर करते हैं, कभी अमेरिका से के साथ कंपेयर करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज उन सवालों का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे और हम बताएंगे कि वो कंपैरिजन क्यों गलत है और हम कितना अच्छा कर रहे हैं। आज के वेबिनार के बाद मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूँ कि आपको बहुत खुशी होगी कि हम कितने आगे हैं दूसरे विकसित देशों से टेक्नोलॉजी में भी। So we will start with the webinar with Padmavati, and she will take us through the vitals, and then I will shift gears towards technology. So Padmavati, over to you. Yeah, thanks, Sandeep. So good evening, everyone, and welcome to today's webinar. We'll just begin. So, as we have been highlighting in our previous interactions with all of you also, this is a bit about, Sovolo's investment philosophy. तो जैसे कि हमने पहले भी बताया है, हमारी जो investment philosophy है, ये 5 main pillars पर आधारित है. It is, scale, like we look for businesses which are scalable in size, which have superior returns as compared to their peer groups in the industry. They obviously have to embed technology because we live in an era where, you can just not ignore tech and AI and stuff, and which are run by good quality leadership. See, for any like ship, if you might have a very capable ship, if you want to, cross the ocean, but if you don't have a capable captain to the ship, then that extremely good quality ship is not of much use. So similarly, a company will have all the right resources, whether it's in term of money, human resource, or anything. But if they don't have the right people at the top who know how to navigate the challenges and to take this company to bigger levels, then it's not going to work out. So therefore, leadership is again of very good, of greatest importance. And then last but not the least, governance. सब कुछ अच्छा है, रिसोर्सेज अच्छे हैं, क्वालिटीज मतलब एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छा है मैनेजमेंट का, लेकिन अगर एथिक्स नहीं है तो फिर वो शेयर होल्डर्स के लिए कभी पैसा नहीं बनाएंगे, वो बस खुद के पॉकेट्स बैठे रहेंगे. तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है उसमें ये 5 चीज या ये 5 मेन पिलर्स है जो हम हमेशा ध्यान में रखते हैं जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं.
or this has really paid out very well in the last 2 years. Sowilo has got a lot of accolades. We have been, recognized by the Finance Outlook magazine as one of the most promising PMS providers. And also, we have been consistently ranked 14 months in a row by the PMS AIF World as amongst the top 10 portfolio, PMS schemes. So this proves this showcases our philosophy, our, capability in not only just philosophizing stuff, investment, but also actually translating it into real returns for our investors. Now, moving forward to how the past month has really been since we met last time during this during this monthly webinar. So Indian markets, they continue to remain tepid. If you look at CY25, Nifty is up around 7% and this is one of the lowest returns that has been generated across various other major economies. But then the momentum is gradually improving now, as there is a lot of domestic triggers, like for example the recent announcement of GST rate cuts. Then if you recollect in the previous budget, even income tax slab changes were done. फिर जो यूएस इंडिया ट्रेड टैरिफ रिलेटेड इतना टेंशन चल रहा था, वो भी अभी धीरे धीरे थोड़ा ठीक हो रहा है. सो हम देख रहे हैं कि हेडलाइन मार्केट्स अभी भी CY25 में हम लोग अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बाकी मेजर इकोनॉमीज या मेजर कंट्रीज से, लेकिन ग्रेजुअली थिंग्स आर इम्प्रूविंग. एंड इफ यू लुक एट द सेक्टर्स, वी हैव सीन द बेनिफिशियरीज ऑफ these GST rate cuts, like for example autos. They have staged a sharp comeback in just last 1 month. So autos, metals, banks, financial services, these are one of the they have been holding up quite well in CY25. In terms of some of the important macroeconomic developments, as I was mentioning, that we have had announcements of GST rate cuts. So if you all recollect, Independence Day speech में हमारे जो प्रधानमंत्री जी है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने बताया था कि ऐसे GST रेट का मतलब GST रेट्स चेंज होंगे, उन्हें कम किया जाएगा. और फिर September 3rd और 4th को जो GST काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें ये अनाउंसमेंट फाइनली आया, जिसमें कि बताया गया कि September 22nd से इफेक्टिव होके we'll be moving to a dual rate structure, wherein you will have 5% and 8%, and it replaces the current 4-tier structures. Even the compensation cess is going to be removed. So abhi kya hoga? 5%, 18%, and one slab rate of 40%, which is just for the sin goods, like luxury and sin goods. So इससे क्या हो जाता है कि अगर हम नंबर्स देखें तो 26 में तो इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन FY27 में वी आर गोइंग टू गेट सिग्निफिकेंट बेनिफिट. सो अगर आप ओवरऑल डिमांड बूस्ट अगर हम देखें इस मेजर से, तो roughly around 0.6% of GDP is the boost that will happen. And predominantly the way the rates have been reduced, we are seeing that consumption oriented items like automobiles, footwear, consumer durables, FMCG, these are the sectors which will be the key beneficiaries. In the later part of today's presentation, we will also discuss how this move is going to benefit Sowilo's portfolio stocks. But moving forward, let's just discuss about some of the other important economic developments. So इस week US Central Bank, जो कि FOMC Federal Reserve है, उनकी मीटिंग थी, and उसमें उन्होंने first time they have again in the first time in last several months, they have cut their rates by 25 basis points, and the commentary is quite ऑप्टिमिस्टिक. इधर डॉट प्लॉट मतलब फेड का जो फ्यूचर रेट रिडक्शन का जो ट्रेजेक्टरी होता है, जिसको कि डॉट प्लॉट बोलते हैं, दैट इज इंडिकेटिंग दैट दे विल डिलीवर 2 more rate cuts in CY25 and 1 rate cut in CY26. तो इसका क्या मतलब है कि अभी 2025 में जो 2 मीटिंग्स होंगी फेड की, उस दोनों मीटिंग्स में वो अगेन 25 बिप्स रेट कट करेंगे. And this is more like a risk management measure, nothing to panic as a recession like response. तो अब क्या हो रहा था कि जैसे हम लास्ट वेबिनार में भी बता रहे थे कि RBI ने तो 100 बेसिस पॉइंट्स रेट काट दिया था फेब से, लेकिन इफेक्टिव ट्रांसमिशन काफी कम हुआ था. So because broader markets were still waiting for signals from US. So now that US has also started cutting rates, this is really very positive for transmission to happen in the
domestic economy. Apart from that, we had Q1 FY26 GDP numbers, which were released on August 10th. So Q1 FY26 real GDP grew by 7.8%. Now this is it is quite higher, but it is more a statistical boost because क्या हो गया कि इन्फ्लेशन गिरने की वजह से हमारा जो डिफ्लेटर था वो बहुत ही श्रिंक हो गया. सो नॉमिनल जीडीपी अभी भी सिंगल डिजिट 8.8% रहा है, and this is something which is quite weak. But real GDP has kind of surprised on the positive side, but it's more statistically driven because अगर आप बाकी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स देखो तो Q1 में वो काफी वीक थे, बट Q2 में ये जितने भी मेजर्स आ रहे हैं इन सभी से एक एक्सपेक्टेशन है कि एक जेन्यून रिकवरी विजिबल होगी, स्पेशली विद द फेस्टिव सीजन एंड स्टफ. और इसके अलावा हमारे इन्फ्लेशन नंबर्स आए थे. सो अगस्त में सीपीआई इन्फ्लेशन हैज कम एट 2.1%, स्लाइटली हायर देन 1.6% व्हिच वाज देयर इन द प्रीवियस मंथ. तो ये सब क्या होता है ना कि जैसे आपका वेजिटेबल डिफ्लेशन श्रिंक होते जा रहा है, इट्स मोर लाइक अ बेस इफेक्ट ड्रिवन थिंग, नथिंग टू वरी बिकॉज अभी भी हम आरबीआई के कंफर्ट बैंड में ही है और एक्सपेक्टेशन है कि फॉर दिस फुल ईयर वी विल रिमेन इन आरबीआई's कंफर्ट बैंड. सो एज लॉन्ग एज इन्फ्लेशन रिमेन्स benign, RBI doesn't have to worry and it can keep interest rates quite like at lower levels, and it can maintain an accommodative stance also from that perspective. So that is something which is again on the optimistic side. And lastly, on the trade deficit, so we have seen that trade deficit has remained quite elevated, but that is more because of gold and other factors. Exports growth in August did slow down because I mean almost optically अगर आप year on year growth देखो तो 9-month low पे आया है, but this is like a bit of we are kind of reflecting to some extent whatever the tariff related measures, but there's an expectation that this will also reverse. Yesterday itself we had a chief economic advisor saying that by November this penal rate which was imposed on India by the US, that might go away. So we have to wait and see how the discussions really pan out. India has not succumbed or has not given in to the pressure that is being levied by the US administration. तो हमें देखना है कि ये कैसे जाएगा. Apart from that, now, how do we see things really panning out? So I would just like to highlight three main things before I hand it over to Sandeep for taking, the discussion on the tech front. तो जीएसटी के बारे में बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या होगा. तो एक लाइक टू लाइक कंपैरिजन जैसे ऑटो सेक्टर्स में किया जा सकता है. तो अगर आपको याद है जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008-9 में, तो उस समय गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टिमुलस मेजर्स लाए थे. तो उसमें उस समय भी एक्साइज ड्यूटी कट हुए थे और तभी जो बेनिफिट था वो रफली 0.9% ऑफ जीडीपी था. तो अगर आप ये देखें जो ऑटो सेल्स जो कि काफी स्लो डाउन हो चुकी थी बिकॉज ऑफ द क्राइसिस, जैसे ही ये एक्साइज ड्यूटी कट हुआ और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने पे कमीशन लाया था, उन्होंने फार्म लोन वेवर्स किए थे, उन्होंने रूरल स्पेंडिंग बढ़ा दी थी. तो ये इतना जो मतलब एग्जॉस्टिव स्टिमुलस दिया था इकोनॉमी को कि वी सॉ अ शार्प रिकवरी इन ऑटो सेल्स. अब इस समय हम देखें तो उतना ज्यादा स्टिमुलस तो नहीं है, लेकिन जीएसटी कट हुआ है विच इज क्वाइट मीनिंगफुल. एंड सेकेंड, बजट में पर्सनल इनकम टैक्स में भी चेंजेस हुए थे, जिससे कि क्या होता है अप्रोक्सीमेटली इफ समवन इज अर्निंग अप टू 25 lakhs annual income, he gets savings of approximately 1 lakh per annum. So that is extra money in his hands which can be diverted towards consumption. तो ये दोनों फैक्टर्स से एक एक्सपेक्टेशन है कि जो ऑटो सेल्स जो लास्ट एक साल से स्लो हो चुके हैं, they might see a recovery, and that is why we have seen that even auto stocks have really risen. और फिर जैसे मैं बता रही थी कि आरबीआई ने तो रेपो रेट काट दिया है, लेकिन हमारे जो जीसेक 10-year जीसेक बॉन्ड यील्ड्स है, ट्रांसमिशन अब तक पूरी तरह से नहीं हुआ है. तो इसका 2-3 कारण है. एक कारण है कि अब तक ग्लोबली यूएस वाज नॉट कटिंग रेट्स, सो बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स वर नॉट हैविंग दैट कॉन्फिडेंस. एंड सेकेंडली थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन को लेके भी थोड़ा बहुत था. सो अब अगर आप देखो, एंड सॉरी वन मोर थिंग, थर्ड थिंग, गवर्नमेंट का जो फिस्कल डिसिप्लिन है उसमें हमेशा एक क्वेश्चन रहता ही है थोड़ा बहुत, स्पेशली ये सब जो फियर था कि मतलब जीएसटी कट होगा, तो इससे क्या हो जाता है कि देयर इज लेस रेवेन्यू इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो फिर लोग स्पेंडिंग कैसे करेंगे, फिस्कल डेफिसिट कैसे मेंटेन करेंगे. तो ये सब फियर की वजह से अगर आप देखो तो बॉन्ड यील्ड्स अभी भी ट्रांसमिशन नहीं हो पाया है. बट नाउ we are seeing that inflation consistently remains benign.
fiscal discipline is being maintained, and globally US has started to cut rates. So if we combine all of these things, we really need to understand that there is a high chance that even RBI has more legroom to cut rates, and also transmission may pick up. Agar transmission pick up hota hai, to that will be very bullish for BFSI sector. And then uh, there's a lot of talk about how Indian markets are underperforming emerging markets. लेकिन we want to highlight that this is just a short term phenomenon, because क्या हो गए थे ना कि हमारे valuations काफी expensive हो गए थे, earnings growth kind of थोड़ी near term में flattish हो गई थी, but still from a 5 years perspective we have been significantly outperforming emerging markets. It's more so ये जो एक साल का अंडर परफॉर्मेंस है ये एक नियर टर्म ब्लिप है rather than structural derailment, because इंडिया का अभी भी structural story काफी strong है. So with that, I think I've covered, the broad, just an overview of what's happening with markets. Now we like to move to the most interesting part of today's discussion, which is, about the Mag 7 and rise of platform businesses in India. So before I hand it over to Sandeep, I just want to play a quick snippet of, his interview and on CNBC. Just a second. Well, Sandeep, thanks a lot for coming down and welcome to the show. Why hasn't India produced, say, a Magnificent Seven type of tech giant yet? Could you tell us what's holding us back? And do you believe actually we're headed in that direction? We're getting a little impatient. Yeah. So it is a very interesting question. And Nigel, let me tell you that, evolving a platform like Mag 7 type of companies, it takes time. It is a factor of GDP growth rate. It is a factor of how internet is spreading and all those things. These platforms, if you see Mag 7, I am tracking for last 20 years, they have evolved over a period of time. You will be surprised to know that Microsoft listed in 1986 at $750 million valuation only. And at that time, US GDP was $4.9 trillion. And we are not yet there. And we are seeing in India small caps listed at $750 million. Okay. So I think, we in our country also now when GDP comes in, when GDP starts growing and the incremental money which comes, this money, allows people to spend on different things which generate the need for platforms, and that is how the ecosystem of tech develops. Yeah, so if you want to see this full interview, then y'all can visit our YouTube channel and watch this entire video. With that, I'll hand it over to Sandeep, and he can take it forward from here. Yes, Sandeep, over to you. Yeah, thanks Padma. Thanks for wonderful explanation of all the slides. So आज जैसा कि मैंने presentation की शुरुआत में कहा था, and if anyone has a problem with Hindi, please do send a message. We will again try to make it a mix, but for broader audience we are trying to use both the languages. So जैसा मैंने नाइजल के शो पे भी कहा था कि हम लोग और आज अपने वेबिनार के शुरुआत में भी कहा था कि सारे दिन हम व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखते हैं, हम चाइना से पीछे हैं, हम यूएस से पीछे हैं, हम बहुत पीछे रह गए हैं और हमने कुछ नहीं किया है. तो ये थोड़ा सा डेटा देखने की जरूरत है. आई बिलीव एंड मेरा मानना है, एंड दिस इज बेस्ड ऑन डेटा एंड नॉट जस्ट थॉट प्रोसेस. अगर आप डेटा देखेंगे सो Ariman, can we, Padma, can we go to slide number 22 and then we'll come back here. So ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है और ये बहुत सारे सवालों का जवाब आपको दे सकती है. इसमें देखिए सबसे पहले हमने कंपनीज के नाम डाले, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनवीडिया, गूगल इज आल्सो कॉल्ड अल्फाबेट नाउ, Amazon, एप्पल, मेटा, टेस्ला, एंड इनके ईयर ऑफ लिस्टिंग डाले और उस साल यूएस की जीडीपी कितनी थी और आज कितनी जीडीपी है, और उस टाइम जब ये लिस्ट हुए थे तब आज का मार्केट कैप क्या है और उस टाइम इसका इन कंपनीज का मार्केट कैप क्या था और आज क्या. तो अगर आप देखेंगे कोई भी कंपनी का 2 डेसिमल प्लेस में भी मार्केट कैप नहीं था. माइक्रोसॉफ्ट का तो मैंने एग्जांपल दिया, 1986 में जब वो लिस्ट हुई तो $750 मिलियन पे हुई थी और उस टाइम भी यूएस की जीडीपी 5 ट्रिलियन थी, इंडिया की आज भी 4.4 पे है. उसके बावजूद भी हमारे देश में अगर आप देखें 2004 में टीसीएस जब लिस्ट हुई तो भी वो काफी इससे बड़ी साइज में 7 बिलियन पे लिस्ट हुई थी. और अभी जोमेटो जो लिस्ट हुआ है वो भी 3 बिलियन पे लिस्ट हुआ है. स्विगी भी
2% ऑफ इंडियन जीडीपी पे लिस्ट हुई है। तो हम लोगों के यहाँ तो बहुत बड़े नंबर्स पे लिस्ट हुए हैं, तो हमारी कंपनियों ने बहुत बेटर साइज पे आके पैसा मार्केट से लिया है, वहां की कंपनियों ने तो बहुत स्मॉल साइज पे लिया है। दूसरी बात, ये हमको हमेशा समझना पड़ेगा, जो ऊपर का चार्ट भी आप देखेंगे कि कैसे ये मैक्स 7 का इंपॉर्टेंस, जो ब्लू वाला शेडेड बैकग्राउंड है, अगर आप वो देखें तो वो यूएस की जीडीपी है, और जो सैफरन कलर में है वो इंडिया, वो ये मैक्स 7 का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आप ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट 5-6 साल में, इतने वर्षों की मेहनत के बाद, ये सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ यूएस जीडीपी हो रहा है। तो आप अगर देखेंगे जो पर कैपिटा इनकम पे इतना इकोनॉमिस्ट लोगों का फोकस होता है, उसका रीजन यही है कि जब तक हम $0 से $6,000 तक का पर कैपिटा इनकम होती है, तब तक हमारी जिंदगी की बेसिक नीड्स पूरी होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, एडुकेशन, मेडिकल, ये सब सारी पूरी होती है। और $6,000 के बाद समय आता है, अगर $6,000 हमने पर कैपिटा इनकम अचीव कर लिया, तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि हमारी पॉपुलेशन अब बहुत ज्यादा शिक्षित हो गई है, बहुत कैपेबल हो गई है, और ऑटोमेटिकली फैमिली प्लानिंग पिक्चर में आ जाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हो जाता है। उसके बाद जो पर कैपिटा इंक्रीज करना है अगर इनकम, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि देन आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिएगा, आपको हाई एंड प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, हर आदमी की इनकम बढ़ानी है तो प्रॉफिट पर पर्सन बढ़ना पड़ेगा, जो भी उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है। उसके लिए आपको आरएनडी में इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो आरएनडी में हमको 10-15 साल लगते हैं। और वो आरएनडी का पैसा भी हम तभी जनरेट कर सकते हैं जब हमारी जीडीपी की साइज बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, जो आपका इंक्रीमेंटल पैसा हाथ में आता है, जो एक्स्ट्रा पैसा हाथ में आता है, वो पैसा रोटी कपड़ा मकान में नहीं जाता, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने अचीव किया हुआ, उसको रोटी कपड़ा मकान की क्वालिटी को इंप्रूव करने में उसमें से 20-25% जाता है, फिर भी आपके पास डिस्पोजेबल 75%, 70% रहता है, जो आप यूज कर सकते हो। तो ये स्लाइड दिखाने का, बीच में आके ये स्लाइड दिखाने का एक पर्पज सिर्फ यही है कि अगर आप यूएस की कंपनीज को देखो, जब ये लिस्ट में थे तो ये 3-4 डेसिमल प्लेसेस में थे एज ए परसेंटेज ऑफ यूएस जीडीपी, और वहां से आज ये डबल डिजिट परसेंटेज में आए हैं। और इसमें भी अगर आप कोविड के बाद का कंट्रीब्यूशन देखें, 2020 के बाद का, वो बहुत जोर से मूव हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं किया या कम किया है, बट ये जो डेल्टा मिलता है आज, आप अपन अपने लाइफ में भी हमने देखा है कि हम जब नौकरी स्टार्ट करते हैं या बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसको 5 साल 10 साल के बाद हमें एक सस्टेनेबल पैसा मिलता है या उसका बेनिफिट मिलने लगता है। सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है। तो मैं ये सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो यूएस में आज मैक्स 7 का कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, ये इसमें पीछे 40-45 साल की मेहनत गई, और 40-45 साल जब पहले जब उन्होंने मेहनत करना चालू किया था, तब भी वो हमसे बड़े थे जीडीपी टर्म्स में। सो इतना सा सिर्फ मैं बताना चाह रहा था। सो नाउ वी कैन गो बैक टू दैट माइक्रोसॉफ्ट स्लाइड, पद्मा। सो ये जर्नी अगर आप देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट की जो जर्नी है, हमने इसको रिफ्लेक्ट किया है यहाँ पे। आप अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो हमने इसमें सब सारा डेटा डाला है। आज माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोपायलट टूल्स लॉन्च किए हुए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसके यूज हो रहे हैं, क्लाउड में बहुत सारा ग्रोथ हुआ है ये, और एआई में अभी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे आर स्पेंडिंग। तो ये सब अगर आप देखेंगे, इसका बैकड्रॉप क्या है, तो अगर ये चार्ट देखें, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। इसमें एक लाइन जा रही है जो सैफरन कलर की है, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट का प्राइस कैसे मूव हुआ है, उसके बाद उसका रेवेन्यू कैसे मूव हुआ है, वो आपको ब्लू बार में दिखेगा। और उस ब्लू बार के अंदर में एक लाइट ब्लू कलर का बार है जो नेट इनकम दिखाता है। तो अगर आप देखेंगे नेट इनकम कितनी शार्पली मूव हो रही है ग्रोथ के साथ, एंड उसके बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो आपको यूएस जीडीपी का शेडेड वर्जन दिखेगा। तो आप देखिए, जितनी स्पीड से यूएस जीडीपी ग्रो हुई है, उससे ज्यादा फास्ट रेट से ये पिछले 3-4 साल में इनका रेवेन्यू और इनकम ग्रो हुआ है। तो जो मैं पॉइंट पहले बोल रहा था कि जैसे आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आने लगता है, तो नीड फॉर हाई एंड प्रोडक्ट, हाई एंड थिंग्स गोज अप, एंड उसके कारण इसका इम्पैक्ट दिखने लगता है। और इसमें हमने वो सारे हिस्टोरिकल पिछले 40-45 साल जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है, इन्होंने जो भी माइलस्टोन्स जब जब अचीव किए, वो सब हाईलाइट किए हुए हैं। ये पीपीटी ऑब्वियसली हम डालेंगे शेयरिंग के लिए, तो आप लोग उसको और डिटेल में देख सकते हैं, बट समय के अभाव के कारण जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं कवर कर रहा हूँ। पद्मा, नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे, सेम पैटर्न दिखेगा, ये अल्फाबेट है बेसिकली गूगल। यहाँ पे भी आपको पैटर्न में कोई फर्क नहीं दिखेगा। जीडीपी से ज्यादा फास्ट रेवेन्यू और पैट ग्रोथ पिछले 5-6 साल में हुआ है, जब एक साइज अचीव हो गया है और इन कंपनीज ने अपना एक प्रेजेंस फील्ड करा दिया है। इनकी डिपेंडेंसी पूरे वर्ल्ड ओवर में स्प्रेड हो गई है, एक्स ऑफ चाइना। चाइना में सिर्फ एप्पल का प्रेजेंस है, बाकी मोस्टली उन्होंने खुद के प्रोडक्ट्स बनाए हैं। एंड
अगर आप ग्रोथ रेट्स भी देखें तो हर कंपनी का सिमिलर है एक्सेप्ट एनवीडिया। सबका 15 से 17% का सीएजीआर ग्रोथ है रेवेन्यू का। थोड़ा पैड ग्रोथ सब जगह ज्यादा हुआ है बिकॉज इन्होंने आरएनडी में स्पेंड किया, जिसका बेनिफिट इनको कोविड के बाद में डिस्प्रोपोर्शनेटली मिला है। और मार्केट कैप का ग्रोथ भी मोटा मोटा पैड के साथ मैच होता दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रोथ, स्टॉक प्राइस जो डिपेंडेंसी है वो प्रॉफिट ग्रोथ के साथ चलती है। शॉर्ट टाइम में जंप हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में मोटा मोटी पैड ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और मार्केट कैप ग्रोथ या शेयर प्राइस ग्रोथ सिमिलर होता है। नेक्स्ट स्लाइड पद्मा। आप यहाँ पे भी पैटर्न देखिए, सेम पैटर्न है फेसबुक का मेटा, विच इज मेटा, जो बहुत लेट लिस्टिंग हुआ 2011-12 में आके। वहां पे भी अगर आप देखेंगे सिमिलर पैटर्न है पैट रेवेन्यू ग्रोथ का। पैट ग्रोथ थोड़ा ज्यादा है रेवेन्यू से और मार्केट कैप उसके आसपास है। नेक्स्ट पद्मा। ये एनवीडिया एक एक्सेप्शन है। एनवीडिया इसलिए एक्सेप्शन है क्योंकि अगर आप जाके टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में देखेंगे, दो तरह की चिप्स का यूज होता है। एक सीपीयू जो आज तक हम करते आ रहे हैं, हर कंप्यूटर में होती है, हर डेस्कटॉप में होती है। एनवीडिया उसमें बहुत बड़ा प्लेयर नहीं था उस टाइम, इंटेल डोमिनेट करता था और दूसरे प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे थे। पर अभी जब से जीपीयू एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि जीपीयू में आपको 3 डायमेंशनल कैपेबिलिटीज मिलती है। सो वो 3 डायमेंशनल कैपेबिलिटीज आपको चाहिए टू रीड वीडियो कंटेंट, टू रीड विजुअल कंटेंट्स। और वो जब से आई तब से एनवीडिया का जो प्रोडक्ट था वो हिट हो गया। और एनवीडिया ने पिछले 5 साल में उसका रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे 67% है, पैट ग्रोथ 89% और मार्केट कैप का भी 68%। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक अगेन एंड अगेन कि ये जब आप नया डिस्कवरी करते हो तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, आपको प्रॉफिट में एडवांटेज मिलता है, लेकिन फाइनली स्टॉक प्राइस लॉन्ग टर्म में 5 साल 10 साल के पीरियड में आपके प्रॉफिट ग्रोथ को टैग करता है। नेक्स्ट स्लाइड पन्ना। सेम स्टोरी एप्पल के। एप्पल में आपको रेवेन्यू ग्रोथ कम दिखेगा। उसका रीजन है क्योंकि एप्पल जितने इंस्ट्रूमेंट बेच सकता है वो उसने आज से 4-5 साल, 7-8 साल पहले ही अचीव कर लिया था। ऑलमोस्ट सैचुरेशन आ गया था। अभी सिर्फ वो नए मॉडल निकालता है जिसका इंक्रीमेंटल थोड़ा बेनिफिट होता है। बट उन्होंने अभी जो किया है पिछले 3-4 साल में बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट उन्होंने किया। उन्होंने अपनी सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज और दूसरी सर्विसेज को बहुत स्ट्रांगली पुश किया है। और उसके कारण उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो काफी बेटर है देन रेवेन्यू ग्रोथ। एंड उन्होंने आरएनडी में भी बहुत जोर से स्पेंड किया। एंड देर इज द एक्सपेक्टेशन कि दे विल डोमिनेट द सर्विसेज बिजनेस इन कमिंग नेक्स्ट 5 years। एंड उसके कारण वहां पे भी एक बहुत बड़ा आपको मार्केट कैप ग्रोथ दिखेगा। नेक्स्ट पद्मा। सो टेस्ला एक मिक्स कंपनी है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल से हम उसको सबको जानते हैं, बट उसके अलावा भी उसके बहुत सारे बिजनेसेस हैं। वहां पे भी सिमिलर स्टोरी है। रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा है, पैट ग्रोथ बहुत अच्छा है, लेकिन मार्केट कैप ग्रोथ 10 साल के सीजीआर पे ज्यादा है, नियर टर्म में कम है क्योंकि बहुत अपफ्रंटिंग हुआ है। इस पे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड जब थोड़ी बाद में दिखाऊंगा, जिससे आपको इसका आंसर मिलेगा कि इस केस में, टेस्ला के केस में ऐसा क्यों हुआ है कि मार्केट कैप का ग्रोथ पैट ग्रोथ के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो कुछ कुछ टेक्नोलॉजी और कंपनीज ऐसी होती है जहां पे इन्वेस्टर्स मार्केट कैप को अपफ्रंट कर देते हैं। वो आपको आगे चल के मैं दिखाता हूँ वो स्लाइड भी। ये अमेजोन है। सिमिलर पैटर्न आपको दिखेगा यहाँ पे भी। अपफ्रंटिंग हुआ है बहुत ज्यादा मार्केट कैप में, इसलिए रेवेन्यू ग्रोथ अभी आई है, पैड ग्रोथ अभी आई है, लेकिन मार्केट कैप ग्रोथ बैक एंडेड, फ्रंट एंड अपफ्रंटेड है। इसका ही एग्जांपल देके मैं आपको दोनों स्टोरीज समझाने वाला हूँ थोड़े बाद में। ये स्लाइड मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। अब हम आते हैं इंडियन इंडियन स्टोरी पे। तो इंडिया में बिग टेक जो यूएस में है उसके सामने हमारा क्या आंसर है। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले तो जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमको, हमारे पास भी गूगल जैसी कंपनी होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी होनी चाहिए, टेस्ला जैसी, एनवीडिया जैसी कंपनी होनी चाहिए, आई थिंक वो एक्सपेक्टेशन बहुत गलत है। क्योंकि लता मंगेशकर क्रिकेट नहीं खेल सकते और सचिन तेंदुलकर गाना नहीं गा सकता। तो हमारी कंट्री एंटरप्राइज पे बनी नहीं है। हम एंटरप्राइज कंट्री नहीं है। एंटरप्राइज हमारा स्ट्रेंथ नहीं है। हमारा स्ट्रेंथ हमारी पॉपुलेशन है, हमारी स्ट्रेंथ हमारी डेमोग्राफी है, हमारी स्ट्रेंथ। और हमें उस स्ट्रेंथ पे जो भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे, बनाएंगे, वो सुपर हिट होंगे। तो मैंने टीवी पे भी मल्टीपल शोज में बोला है, मेरे पॉडकास्ट में भी बोला है कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि इन्फोसिस टीसीएस वगैरह को एआई करना चाहिए या प्रोडक्ट्स बनाना चाहिए गूगल की तरह, मेटा की तरह, ये एक्सपेक्टेशन एकदम गलत है। जस्ट उनके पास बहुत सारा कैश बैलेंस है, उसको आरएनडी में डाल देना चाहिए, ये सही बात नहीं है। तो उस रीजन से तो फिर एक्सेंचर को भी एआई करना चाहिए, एचपी को भी करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करे। तो जिसका जो बिजनेस है उसको वो करना चाहिए। दूसरी बात, क्या हमारी कंट्री सच में
प्रोडक्ट सेंट्रिक कंट्री है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंट्री है, मेरे को लगता नहीं है आज के दिन है, क्योंकि आपको R&D में बहुत स्पेंड करना पड़ता है। अगर आप R&D में देखो, आज के दिन ये जितने भी मैक्स 7 है, ये क्वार्टरली 10 से 15 बिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं। हमारे कैश रिजर्व TCS के पास 4-5 बिलियन डॉलर है, इन्फोसिस के पास 4-5-3-4 बिलियन डॉलर है। वो तो हमारे 45 दिन 50 दिन में खत्म हो जाएंगे अगर हम वैसे प्रोडक्ट बनाने जाएंगे, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के लिए आपकी GDP का सपोर्ट होना चाहिए। आपकी GDP इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो आपको दूसरे प्रोडक्ट्स जो आपके बिक रहे हैं वो उसको फंड कर पाए। तो आई डोंट थिंक ये बराबर है। और दूसरा बात, हमारा वो स्ट्रेंथ नहीं है, हमारा स्ट्रेंथ डेमोग्राफी है। इसलिए आप देखिए इंडिया में एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। चाहे वो जोमेटो हो जो अभी एटर्नल बन गया है, चाहे वो स्विगी हो, चाहे वो जीरोडा हो, चाहे वो अभी अर्बन क्लैब जो रिसेंट लिस्टिंग है। क्योंकि 140 करोड़ लोग हैं, और आपको ये समझना पड़ेगा कि 140 करोड़ लोग होके भी हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म क्यों चल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है, 3-4 रीजन आपको देखना है कि एक तो हमारे फर्टिलिटी रेट कंसिस्टेंटली फॉल हो रही है। अगर आप देखेंगे 2001 में फर्टिलिटी रेट 2.6% थी, वो आज के दिन 1.9 के आसपास आ गई, 1.96 टू बी प्रिसाइज। तो बेस और 2.1 रिप्लेसमेंट रेट होता है। तो हम फर्टिलिटी रेट कम हो गई है, और हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो आधी हो गई है। 1.5% हमारी एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी 2001-2 में, जो आज गिर के 0.84 हो गई है। एंड यही रीजन है कि आप जो भी FMCG कंपनीज देख रहे हो उनमें वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रही है। वो सिर्फ जो भी 6-7% ग्रोथ आ रही है, वो ग्रामेज कम करके मैगी में 12 ग्राम वेट कम हो गया 10 रुपए की पैकेट का पिछले 5 साल में। तो इस तरह से ग्रामेज कम करके इनडायरेक्टली प्राइस इंक्रीज करके और रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है, एक्चुअल ग्रोथ नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ ही कम हो गई है। तो आपका इंक्रीमेंटल कंजम्पशन कम हो गया है। तो हमारी कंट्री में जैसे जैसे पॉपुलेशन कम होगी और लोग जैसे जैसे अपग्रेड होंगे, तो लोग क्या गणित लगाने लगते हैं धीरे धीरे जब समय बढ़ आगे जाते जाता है, कि सैलरी का डिस्पैरिटी आज भी बहुत ज्यादा है। आज भी आपको लेबर जो मिल रहा है वो व्हाइट कॉलर इम्प्लॉयज जो काम कर रहा है उसकी सैलरी और जो लेबर है उसकी सैलरी में बहुत बड़ा गैप है। तो व्हाइट कॉलर इम्प्लॉय हस्बैंड वाइफ क्या सोचते हैं, हम दोनों काम कर लेते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, सब्जी लाना, भाजी लाना, राशन लाना, जो भी हम पहले खुद जाके करते थे, वो काम अब हम आउटसोर्स करके अगर हो जाता है तो हमारा वो समय बचेगा, वो समय हम परिवार को देंगे। और जो समय हम परिवार को पहले दे रहे थे उसको भी हम अपने जॉब में या काम में और ऐड कर देते हैं, तो हमारा रिटर्न्स जो समय पे है वो ज्यादा हो जाएगा। ये थॉट प्रोसेस चल रहा है। लोगों के पास समय नहीं है, और समय के अभाव होने के कारण डेवलप मार्केट क्या करता है, वो एसेट को स्वेट करता है, यानी कि एसेट को और ज्यादा यूज करता है, उससे प्रोडक्टिविटी निकालता है। हमारे देश में प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो ह्यूमन रिसोर्स को स्वेट कर रहे हैं या उनको ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो अगर एक आदमी को आप घर पे रखते हो, जैसे हमारे बचपन में हमारे माँ बाप हमें बोलते थे ये ला दो वो ला दो, हमको 4 बार मार्केट भेजते थे। आज बच्चे वो काम करने को लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर कम्पिटेटिव प्रेशर बढ़ गया, पढ़ाई का प्रेशर, इसका प्रेशर, उसका प्रेशर। तो आपका ये काम कौन करेगा? तो प्लेटफॉर्म्स है जो लोगों को हायर करते हैं, और उनसे ये सेम काम जापान स्टाइल में, हमारे प्लेटफॉर्म्स उतने एफिशिएंट है जितना जापान में मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइन है। एक काम बार 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 करके एक्सपर्टीज हो गया, उसी तरह हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म्स में एक काम बार बार स्वयं इंसान कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बेटर है। एंड इसके कारण हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म्स इतने सक्सेसफुल है। और जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, अभी उसका सक्सेस अगर प्रॉफिट से है तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़े बाद में। पर जो ग्रोथ हो रही है प्लेटफॉर्म्स की, फिनोमिनल है। और मुझे लगता है, डेटा के साथ मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि हमारे जितने प्लेटफॉर्म है वो US में जो आज के दिन बड़ी कंपनीज है उनसे 10 to 20 टाइम्स ज्यादा मार्केट कैप पे लिस्ट हो रहे हैं। एंड एज ए परसेंटेज ऑफ GDP तो बहुत ज्यादा, 100 टाइम्स ज्यादा पे शायद लिस्ट हो रहे हैं। एंड इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है देन व्हाट ग्रोथ वी हैव सीन इन माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर्स। तो हमारी ये प्लेटफॉर्म, अब जब हमारी GDP आज 4.5 ट्रिलियन की है, ये GDP जब हमारी 10 ट्रिलियन की होगी, तो आपको यही प्लेटफॉर्म इतने बड़े हो जाएंगे, ये सब 100-100 बिलियन के प्लेटफॉर्म, 150-150 बिलियन मार्केट कैप के प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। और फिर एक कोई बड़ा डिसरप्शन आएगा जो कोविड के बाद हमने देखा टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, तो वो 100 बिलियन से आपके 300-400 बिलियन पे जंप करने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आप ये बोलते कि क्या हमारी कंपनियां 4-4 ट्रिलियन की हो जाएगी US की तरह, वो तब होगी जब हम भी 50 ट्रिलियन के होंगे या 40 ट्रिलियन के होंगे। आज नहीं हो सकती। बट हमारा जो इंक्रीमेंटल यहाँ से जो भी GDP ग्रोथ है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्लेटफॉर्म्स को जाना चालू हो जाएगा। तो दिस इज माई थ्योरी। मेरे ख्याल से इंडिया में भी मैक्स 7 क्यों, हमारे यहाँ 10-20 बड़े प्लेटफॉर्म्स आएंगे, हर चीज में प्लेटफॉर्म्स आएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाएंगे। मेरे को लगता है हमारा जो टेक्नोलॉजी है, बिग टेक है, वो प्लेटफॉर्म पे है। क्योंकि हमारे पास जो हमारी जो वेज आर्बिट्राज है, मतलब जिसको इनकम क्या गैप है व्हाइट कॉलर ब्लू कॉलर में, वो इतना बड़ा है
कि उस गैप, हर आदमी जो व्हाइट कॉलर पे बैठा है वो अपना समय बचा के जो, क्योंकि उसका समय का पर आवर का रेट उसको 1,000 रुपए या 2,000 या 10,000 रुपए मिल रहा है, और ब्लू कॉलर को 50 रुपए मिल रहा है, तो वो अपना रिटर्न बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए वो जो काम आउटसोर्स हो सकता है वो आउटसोर्स कर रहा है। और ये हमारा बिजनेस मॉडल है, हमारी पॉपुलेशन हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी डेमोग्राफी हमारी स्ट्रेंथ है। और इस डेमोग्राफी में जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये गैप बढ़ेगा, और जैसे जैसे ये गैप बढ़ेगा मुझे लगता है प्लेटफॉर्म्स और ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल होते जाएंगे। सो दिस इज ब्रॉड थीसिस ऑन दिस इंडिया स्टोरी ऑफ प्लेटफॉर्म। We will discuss few of the names. So, Padma, next slide. We'll go little quick because we have to give some time for questions. Areman, you want to take this? Sure. So, ये क्लासिक एग्जांपल है ऑफ अ ब्रेड एंड बटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्लेटफॉर्म। हम देखेंगे कि डेकेड से इन्वेस्टिंग इन इंडिया प्योरली रिलेशनशिप ड्रिवन था। लोकल ब्रोकर्स के पास आपको जाना था, आपको अगर इन्वेस्ट करना हो तो उनसे राय मांगो, आपको अगर बेचना है आपका स्टॉक, देन यू हैव टू गो बैक टू देम, you have to ask for your you have to say, put your order in, and then it takes time to get processed. Everything was pen and paper. अभी जैसे टेक्नोलॉजी आ गया है, then we are seeing that using digitizing onboarding, KYC करने के लिए आज एक आपको 10 मिनट लगता है और आपका डीमैट खुल जाता है। There is very low brokerage, almost, and some of them have zero brokerage, which has removed the cost of barrier also. So a lot of the participation has also gone up by a lot. And it's a mobile first experience. आज almost हर इंडियन के हाथ में एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन है, and because of that the exposure to these kind of applications is very very high. Now, we have seen three prime examples of these in the market: Zerodha, Angel One, and Grow. Three very good examples because Zerodha is private, Angel One is listed, and Grow is pre-IPO. तो जीरोधा ने इस मार्केट में पहले एंट्री किया था, एंड दे डिड इट द बेस्ट वे बाय दे आर स्टिल करंटली द लोएस्ट कॉस्ट लीडर, एंड दे हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन दिस स्पेस। एंड उनका मोट ये है कि वो पहले थे ये मार्केट में और उनका ट्रस्ट बहुत जल्दी बढ़ गया। एंड देन इफ यू मूव ऑन टू एंजल वन पहले एक फिजिकल ब्रोकर था, and then it moved on to this platform with very very good promoters. The promoter quality was very high, and they were able to drive this change very quickly. And also they took very great advantage of the FNO part of the FNO side of investing, और उनका ग्रोथ उधर से आया। एंड उनका जो ऑलरेडी दे वर इन द मार्केट, दे वर लिस्टेड एंड दे वर अ ट्रस्टेड ब्रांड, इसकी वजह से उनका ग्रोथ हैज कम एस्ट्रोनॉमिकली। And lastly is Grow, which is also a really good example because they have targeted the marketing side and the youth experience. They have made it the easiest to invest. इनका app बहुत simple है. They have made investing super easy, and that is their moat. So this is the basic bread and butter of platform businesses, which is the finance-based platforms. We can move on to the next slide. Now, if we come on to the delivery-based platforms, something very interesting. I'll let Sir move on to this after that. But everything in, as Sir said before, जब हमको कोई भी ग्रोसरी चाहिए था, we had to go and come back. We had to keep doing these, going to the market for getting groceries, coming back. It was a very tedious process. आज के दिन में, I'm sure all of you have experienced this, but it has become so easy to get food. In fact, आज के दिन में 4-5 ब्लिंकिट या स्विगी के ऑर्डर आते हैं घर पे, because it has just become that easy to order. And they have created this amazing platform where it is revolutionary in fact, because they are making a food and grocery platform. आप कुछ भी चाहिए मंगवा सकते हो, खाना मंगवा सकते हो, ग्रोसरीज मंगवा सकते हो, आप आज तक आप आईफोन भी मंगवा सकते हो on these platforms, which is it's saying that there is no need anymore to go out to the kirana dukan or the grocery stores. It has become easy to order from the mobile phones, and this is only possible because of the population that we have and the amount of workforce that we have towards this, and it speaks volumes about the gig economy of India. I'll let Sir continue on this. No, so आर्यमन थैंक यू। तो हमने ये प्लेटफॉर्म्स पे अभी हम और भी चर्चा करेंगे। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग अभी एक कंपनी लिस्ट हुई अर्बन कंपनी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें अभी कवर करना बाकी, काफ़ी क्वेश्चंस भी हैं। तो पद्मा, नेक्स्ट स्लाइड कैन वी गो?
ये हमारे राइड वाले हैं, ये भी बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं। अभी रैपिडो ने नया चालू किया है कि वो आपको एक दिन का यूसेज का सिर्फ 9 रुपया पर राइड देना, 9 रुपया प्लेटफॉर्म फी देना है। तो टफ कंपटीशन दिया उसने ओला और उबर को। उसके बदले में उबर भी आया है, उसने भी 120 से 140 रुपए का ऑफर दिया है। इनकी प्लेटफॉर्म्स की आप बर्निंग कैपेबिलिटी देखिए। उबर ने पिछले, जब से इंडिया में आया, 50,000 करोड़ रुपया उन्होंने ड्राइवर्स में बांटा है, विच इज ह्यूज ह्यूज नंबर। और अगले 3-4 साल में मुझे लगता है उबर इतना बड़ा प्रॉफिट बनाना चालू करेगा इंडिया में, विच विल बी ह्यूज। ओला भी बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन ओला का थोड़ा जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है और जो उसका ईवी वाला बिजनेस है, उसके कारण काफी स्ट्रेस उसके ऊपर आया है और उसका फोकस भी थोड़ा डाइवर्ट हुआ है राइड शेयरिंग से। तो वो भी चल रहा है, लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म। बट हमने ऐसा सुना है और हमने काफी डिटेल में इस पे काम भी किया कि ओला का जो प्लांट वगैरह है वो सब कंप्लीट हो गया, उनका 99% प्रोडक्शन अभी 99% ऑफ द पार्ट्स वो लोग खुद बना रहे हैं। तो इट इज अगेन डूइंग वेरी गुड। तो इस पे भी बात करेंगे। पद्मा, नेक्स्ट। सो या, पद्मा, यू टेक दिस वन। या सो जैसे कि मैं बता रही थी कि जब जीएसटी रिफॉर्म्स पे हम डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे पोर्टफोलियो पे इसका कैसे इम्पैक्ट आएगा, तो आई थिंक मतलब हमारे जो टॉप बेनिफिशियरीज है, सो कंपनीज लाइक ऑटोमोबाइल्स, जो ऑटो एंक्स है, जैसे लैंड या ऑटोमोबाइल रिलेटेड जो सेक्टर्स है, लैंडमार्क कार्स, फिर जेके टायर्स, फिर हमारे जो एफएमसीजी और वहाँ जो सेक्टर्स है, एलटी फूड, जाइडस वेलनेस, these are the these are some of the companies which are going to be the top beneficiaries. In terms of sectoral level, it's hotels because वहाँ काफी कट हुआ है, सीमेंट because वहाँ भी कट हुआ है, 28 से 18% आया है, ऑटोमोबाइल्स 28 से 18, एंड स्पेशली लग्जरी कार्स का भी कट हो गया है. So these are some of the top sectors which will benefit, and we have a good weight on these stocks in our portfolio. हमने इसमें से कुछ नाम यहाँ बताए भी है. So Sovilo's portfolio is well positioned to get benefit from these GST changes. Apart from that, sorry, just one second. Yeah. जैसे कि हम हमेशा ही बताते हैं कि हमें इस वक्त कौन से सेक्टर्स है जो कि हम बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक या बुलिश है, तो बीएफएसआई एंड कैपिटल गुड्स। मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि हमने हमारे पिछले बहुत सारे वेबिनार्स पे इस पे डिस्कशन किया है. आज जो हम मेन चीज डिस्कस कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि अभी संदीप और आर्यमन ने भी, they have highlighted that how India is poised for a big surge in platforms. So we have companies like Swiggy, etc., and some of the other platform companies also in our portfolio. Sandeep, you want to cover on this thing? या तो ये दो आइडियाज हम हर बार 2-3 स्टैंड आउट आइडियाज आप लोग के साथ शेयर करते हैं। हमने पास्ट में लैंडमार्क किया है और भी कुछ कुछ नाम आपके साथ शेयर किए हैं। इस बार अर्बन कंपनी जो नई लिस्टिंग हुई है वो हमें बहुत अच्छी लग रही है। हमारा मानना सेम, जो एक तो ये प्रमोटर्स बाकी प्रमोटर्स से बहुत ज्यादा हमें सुलझे हुए लगे हैं। इनका बर्निंग का जो इंटेंट है वो काफी कम है दूसरों से, एंड दे वांट टू टर्न क्विकली प्रॉफिटेबल एंड कंसोलिडेट, और इनका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है। और जो हमें समझ में आया उनकी बातों से, वो 2-3 नई सर्विसेज ऐड करने वाले, जैसे सिक्योरिटी कैमरास और वाटर फिल्टर। तो उससे भी बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा। मुझे लगता है ये बहुत रिमार्केबल ग्रोथ स्टोरी है लॉन्ग टर्म के लिए। वी आर वेरी बुलिश ऑन दिस कंपनी, and we are already invested, and we intend to take a call as the stock price, based on how stock price behaves. But we believe, जैसे कि हमने स्विगी में बड़ा पोजीशन लिया था 300 कुछ रुपए पे, वहां उसी तरह हम यहाँ पे भी बहुत बुलिश हैं इस प्लेटफॉर्म पे भी। सिमिलरली एक क्राइजेक करके कंपनी है, ये बच्चों का जो इंडिया से बच्चे जाते हैं उनका एडमिशन्स में इनेबलमेंट करती है। इंडिया से लगभग 8 लाख बच्चे जाते हैं, जिसमें से 24,000 बच्चे इनके थ्रू जाते हैं। तो अभी तो बहुत छोटा मार्केट शेयर है, पर ये जो करीब 4 से 5 लाख रुपए इनको मिलता है, जिसमें से 30% इनके पास बचता, 70% डिस्ट्रीब्यूटर को चला जाता है, और वो 30% में सिर्फ 3 से 5% का कैपेक्स है। तो हर साल 25-30% ग्रोथ की स्टोरी है। स्टॉक का मल्टीपल 18-19 टाइम है फॉरवर्ड पे। एंड सबसे बड़ी बात है कि हमने देखा है, जैसे आईटी में भी हमने इनिशियल वर्षों में देखा कि धीरे धीरे आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है, वो और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों मैच हो जाता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट इतना ज्यादा आने लगता है आपके कैश बैलेंस में कि वो आपका टैक्स को टेक केयर कर लेता है। तो इन कंपनीज में हमें लगता है कि आपको ईबिट का मल्टीपल देखना चाहिए, पैट का नहीं, क्योंकि ईबिट और पैट का मल्टीपल जो है वो सिमिलर हो जाएगा कुछ 4-5 वर्षों में। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, हमने मैनेजमेंट से काफी डिटेल में बात की है।
हाँ, इसमें एक रिस्क है कि कल को उठ के यूके गवर्नमेंट कुछ सैंक्शन लगा दे या कुछ कर दे, जो आज तक कभी हुआ नहीं है, तो इनको बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि 90% बिजनेस यूके कंसेंट्रेट, सो कंसेंट्रेशन रिस्क है, बट बहुत अच्छा बिजनेस है, स्केलेबल बिजनेस है, कोई कॉस्ट नहीं है एडिशनल स्केलेबिलिटी का, जो फिक्स कॉस्ट है वही है। तो या गुड टाइम्स में 3% कॉस्ट होता है, बैड टाइम्स में 5% ऑपेक्स होता है, उससे अलावा कोई कॉस्ट ही नहीं है बिजनेस में। और प्लेटफॉर्म और सारा जो है कॉस्ट वो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे है, जो उसी को लाना है बच्चे, और सक्सेस रेशियो भी अच्छी 10% है। आई थिंक वेरी गुड मॉडल। दोनों कंपनी हमें बहुत अच्छी लग रही है, जैसे हमने पास्ट में अपने आइडियाज शेयर किए उस तरह से ये दो नए आइडियाज हैं जहाँ पे हम बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने पास्ट में नेस्को आपसे शेयर किया है, हमने जाइडस वेलनेस शेयर किया है, लैंडमार्क कार किया है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास हमने बताया था कि अगर नीचे आएगा तो हम लेंगे, तो वी आर लाइकिंग दिस आइडियाज। So Padma, I think that's all from our side. We should open for Q&A because very less time is left. Arvindji, you will go ahead. Or... Yes, Sandeep. So we'll take up the first question. What are the core reasons investors continue to back Swiggy even as it report losses? Are there specific growth drivers or market trends supporting this optimism? वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसमें आर्यमन, कैन यू पुल दैट अमेजॉन टेबल? या एक ये मैं आपको ये प्लेटफॉर्म की लाइफ साइकिल दिखाना चाहता हूँ। ये अमेजॉन के एक्चुअल नंबर्स हैं। अमेजॉन 1997 में लिस्ट हुआ था और 2015 तक अगर आप देखेंगे उसका इनकम सिर्फ 20x बढ़ा है, यानी कि 20 गुना हुआ है 20 साल में। लेकिन उसका मार्केट कैप 200 गुना हो गया उस पीरियड में और रेवेन्यू 700 गुना बढ़ा है, और उसका जो लॉस है वो -21% से 0% पे आया। ये एक फेज था अमेजोन का। उसके बाद 2015 से अगर आप देखेंगे उसका प्रॉफिट 117 गुना बढ़ा है, लेकिन मार्केट कैप या शेयर प्राइस सिर्फ 8 गुना बढ़ा है और रेवेन्यू सिर्फ 5 गुना बढ़ा है, और बर्न जबकि प्रॉफिट उसका 0 से 11 हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टर हमेशा, अब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं, अमेजोन, स्विगी, जोमेटो, जहां पे आपको अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लॉसेस लेने पड़ते हैं, और मार्केट कैप भी उसी वक्त बनता है। बाद में जब एक्चुअल प्रॉफिट आता है तब सब कुछ डिस्काउंट हो जाता है। तो ये प्लेटफॉर्म का एक टिपिकल साइकिल है, और ये हमें स्विगी, जोमेटो, अर्बन कंपनी सब में दिखेगा। इसीलिए हम इतने बुलिश है प्लेटफॉर्म्स में, क्योंकि हमें पता है आज वो लॉस कर रहे हैं पर बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल टर्न होंगे। और अभी जब उनका बर्न रेट ज्यादा है, और वो सबसे ज्यादा पैसा इस साइकिल में भी आप देखेंगे जब वो बर्न रेट नेगेटिव से जस्ट पॉजिटिव होने वाली होती है, जहां पे ये सारी कंपनियां लिस्ट होती है, विद इन 6 to 8 क्वार्टर्स हो जाता है लिस्टिंग में के आसपास, तब सबसे ज्यादा पैसा बनता है। तो इसीलिए हम ये प्लेटफॉर्म इस समय खरीद रहे हैं। यस अरविंद जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Volatile. Yeah. So the second question is, foreign flows are volatile while domestic participation is rising. How does Sovelo judge the resilience of Indian markets if global risk aversion spikes? अभी आप देखिए इंडिया का इन्वेस्टर बहुत समझदार हो गया। उसने पिछले 15-20 साल में एक ही चीज सीखी है कि जब मार्केट गिरे तब माल नहीं बेचना है, और जब माल बेचा है तो बाद में वो स्टॉक वापस वहां से 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना हुआ है। तो अभी इन्वेस्टर बहुत समझदार हो गए हैं, और वो अभी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करने लगे हैं। हालांकि अभी भी जो कुछ इन्वेस्टर्स है, जैसा जिरोदा बताता है, जो ट्रेडिंग करते हैं उनको सबको लॉसेस होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें शॉर्ट टर्म मनी चाहिए। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो एसआईपी कर रहे हैं, कंटिन्यूस फ्लो आ रहा है। अब आज एफआई जो 22-23% इंडिया का स्टॉक होल्ड करते थे वो अभी 16 पे आ गए हैं। तो हम नहीं बोल सकते कि कब उनका बेचना बंद होगा, बट मुझे लगता है कि इंडियन इन्वेस्टर बहुत समझदार हो गया है। उसे पता है कि ये कंट्री में ग्रोथ है, यहाँ पे पैसा बनने वाला है, और यहाँ लॉन्ग टर्म तक पिच पे टिके रहना है, तो पैसा बनेगा। So next question is on the significant reforms introduced by the government this year. First, the increase in the income tax exemption limit and the slab benefits, and the second is the GST reforms and implementation. So, what is the market? Market does not appear to be fully pricing in this long-term impact. Why do you think this disconnect exists? मेरे को ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसने भी पूछा है, लेकिन इसका सिंपल जवाब ये है कि देखिए, आप गवर्नमेंट के हाथ में मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, और पैसा लोगों के हाथ में और कोई तरीके से डालने का ऑप्शन है। उन्हें कंजम्पशन बूस्ट करना, कंजम्पशन बूस्ट होगा, डिमांड आएगी, सप्लाई शॉर्ट सप्लाई होता है, तो प्राइस बढ़ते, मार्जिन बढ़ता है, तो प्रमोटर प्राइवेट कैपिटल वापस आता है। तो गवर्नमेंट ने लंबा रास्ता लिया है,
टू इन्फ्यूज कैपेक्स इन द इनकम। फाइनली कैपेक्स होगा तो ही ग्रोथ आएगी लॉन्ग टर्म में। सॉल्यूशन वही है। गवर्नमेंट ने बहुत बार अपील की कि कैपेक्स करो। गवर्नमेंट ने खुद पिछले 2-3 साल में काफी कैपेक्स किया, लेकिन प्राइवेट कैपेक्स पिकअप नहीं कर रहा था। तो गवर्नमेंट ने अभी कंजम्पशन के थ्रू कैपेक्स को पुश करने का कोशिश किया। मुझे लगता है ये रास्ता हो सकता है थोड़ा लंबा हो, बट ये इससे काफी किक मिलेगी। और ऑलरेडी हमने दो पिछले वेबिनार में दिखाया था कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 85% क्रॉस हो गया। अभी शायद हम 91% पे चल रहे हैं। तो उनको तो कैपेक्स करना ही पड़ेगा, और गवर्नमेंट का ये पुश उस कैपेक्स को एक कॉन्फिडेंस देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। You compare India's big tech evolution to the Magnificent Seven. Where do you see network effects strongest in India? Finance, delivery, or mobility? And what is still missing for India's platforms to scale like US tech? नहीं, तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि यूएस टेक का जो प्लेटफॉर्म का स्केल अप है ना, वो जब से वो एग्जिस्टेंस में आया तब से लेकर 2020 तक का देखना चाहिए, और फिर 2020 से 2025 तक का देखना चाहिए। तो 2020 से 2025 का जो मूव है वो बहुत शार्प है और बहुत स्ट्रांग है। उसका एक रीजन कोविड के बाद लोगों ने टेक्नोलॉजी को अलग तरह से यूज करने लगे। वर्क फ्रॉम होम बहुत एक्सेप्टेड प्रिंसिपल हो गया। इंडिया में तो काफी हद तक वापस आ गया, फॉरेन में नहीं आया अभी तक। अभी भी लोग घर से काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों जो हैबिट्स है वो चेंज हो गई, वो रिवर्स नहीं हुई है। लोगों को ऑर्डर करने की आदत घर से हो गई है, वो रिवर्स नहीं हुई। इंडिया में आज भी लोग बाहर जा रहे हैं, घूम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, थोड़ा बहुत फिजिकल मूवमेंट है वहाँ पे काफी कम हुआ। तो मुझे लगता है उसकी तुलना में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म में एक दूसरे क्लाइंट ने यह भी पूछा है कि हमको हमारा तो कोई ऐसा कोई ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके बाद हम क्यों कंपेयर करें। आपने नंबर भी लिखा है स्पेसिफिक कि 10 लाख करोड़ हो सकता है। मैं आपको बोल रहा हूँ आज ही इसी अपने वेबिनार में, मैं ये नहीं बोल सकता कि 10 लाख करोड़ अगले 1 साल में होगा, जोमेटो का वैल्यू नहीं होगा। पर मैं आपको बता सकता हूँ अगले 5-7 साल में 10 लाख करोड़ पक्का हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि अभी तो बहुत अंडर सर्व पॉपुलेशन है। अभी तो इतनी छोटी पॉपुलेशन है जो अफोर्ड कर पा रही है जोमेटो और स्विगी को। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो नहीं कर पा रही है। वो जब करना चालू करेगी तो अभी तो हमारे टॉप मेट्रोस में ये सब प्लेटफॉर्म्स अंदर जा रहे हैं। इसके बाद टाउन्स में जाएंगे, फिर विलेज में जाएंगे। सब चीजें धीरे धीरे, जैसे अभी डोमिनोज और पिज्जा रूरल में ज्यादा बिकने लगा है क्योंकि अर्बन में अवेयरनेस आ गई है कि ये नहीं खाना चाहिए धीरे धीरे। उसी तरह प्लेटफॉर्म से पेनिट्रेशन बढ़ते जाएगी और वहां पे तो इनके लिए और इजी हो जाएगा क्योंकि वहाँ मैन पावर और वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी और इजी है। तो मुझे लगता है जो एक अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट है वो भी फॉर्म होगा धीरे धीरे। आई थिंक वी विल डू वेरी गुड ऑन प्लेटफॉर्म्स। वी विल बी अ कंज्यूमर टेक प्लेटफॉर्म इन country, and we cannot I don't think we will be a very big products and enterprise software country। जो आप अगर मैक्स 7 का सेम टू सेम रेप्लिका इंडिया में सोच रहे हो तो वहां से नहीं आने वाला। इंडिया का मैक्स 7 या बिग टेक ये प्लेटफॉर्म से होने वाले, ये पक्का है। Next question is on the valuations. So valuation across the border market looks quite elevated. In such an environment, how are you positioning the portfolio to manage risks while still capturing opportunities? नहीं, इसमें अपने को जो निफ्टी का जो हम लोग सिंपल क्या देख रहे हैं, निफ्टी का वैल्यूएशन देख रहे हैं। तो उसमें बहुत थोड़ा सा स्क्यूड भी है क्योंकि काफी सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो अभी प्रॉफिट फेज में नहीं है। उसके कारण क्या होता है कि उनके मल्टीपल्स तो हैं। जैसे आपने स्विगी और जोमेटो ही देख लो, उनका मल्टीपल तो बहुत बड़ा दिखेगा। वो सब रेशियो को डिस्टॉर्ट करते हैं। तो हमारा काम, और एफएमसीजी जैसा मैंने कहा कि अभी मुझे एफएमसीजी के मल्टीपल्स 50 पे भी क्यों मुझे नहीं पता। 4 साल से टाइम करेक्शन हो गया, मुझे लगता है आगे भी 4-5 साल पैसा नहीं बनने वाला। तो बहुत सारे वो बाप स्टॉक्स हैं, बाई एट एनी प्राइस वाले, जो धीरे धीरे निकलेंगे लोगों के दिमाग से। उन्होंने 10-15 साल रिटर्न दिया है तो उस दिमाग में बैठे हैं, धीरे धीरे निकलेंगे। तो मेरे को लगता है निफ्टी को हमें इस तरह से दो भाग में देखना चाहिए। पेग रेशियो इज द राइट मेजर। तो जहां ग्रोथ है, जिस सेगमेंट में ग्रोथ है वो लेना चाहिए। जहां ग्रोथ नहीं है और मल्टीपल्स हाई है, सिर्फ डिफेंसिव है, उनमें पैसा नहीं बनेगा। वो सिर्फ आपको एफडी जैसा रिटर्न देंगे। तो हम लोग इसलिए लार्ज आईटी में नहीं है, हम एफएमसीजी में नहीं है, महंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में नहीं है। हमने अपना पोर्टफोलियो उनसे अलग रखा है। हमारा थीम कैपेक्स है, मशीनिंग है, टूलिंग है, प्लेटफॉर्म्स है, वाटर थीम है, फार्मा में कुछ सिलेक्ट नेम्स है। हम इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को पोजीशन करते हैं। Next question. So the next question is, the deck notes that GST cuts will tilt demand towards consumption. How is Sovolo positioning across capex heavy,
versus consumption-driven sectors given this structural shift? तो कंजम्पशन में प्रॉब्लम क्या है ना कि जैसे पद्मा ने नंबर भी बताए 0.6% इम्पैक्ट और वो सब, वो जो इम्पैक्ट है तो हम ऑटो एंक तो ले ही रहे हैं जहाँ पे सबसे बड़ा एक एडवांटेज है, हम होटल्स ले ही रहे हैं जहाँ पे जीएसटी का एडवांटेज है, वो तो हम डायरेक्ट प्ले कर ही रहे हैं, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं जो एफएमसीजी जैसे नेस्ले नहीं लेंगे, एचयूएल नहीं लेंगे, ये नहीं हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वहां पे बहुत हाई मल्टीपल है, तो ये जो थोड़ा बहुत बेनिफिट भी आएगा इससे भी कुछ होने वाला नहीं है, बहुत बड़ा कोई मूव नहीं आएगा। लेकिन इस जो जीएसटी का बेनिफिट ग्रोथ में जो आएगा उसके कारण जो प्रमोटर्स आज के दिन बैठे हैं कि हम कैपेक्स करें कि नहीं, जो जो फेंस पे बैठे हैं वो कैपेक्स करना चालू करेंगे, और कैपेक्स का जो होता है ना वो बहुत जल्दी डिस्काउंट होता है, लोगों को पता चलता है, क्योंकि आप मशीन आज खरीदोगे तो 3 साल बाद प्रोडक्शन देगी, तो इसीलिए हम कैपेक्स में बहुत हेविली घुस रहे हैं। तो जहां भी मशीन बना रहे हैं या इंडस्ट्री में लगने वाली कोई चीजें चीजें बन रही है वो हम ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं वर्सेस कंजम्पशन। सो इट इज क्वेश्चन पूछा है लाइक टेस्ला दे हैव Robotech, SolarTech now planning to integrate X. Nvidia has advantage of chip and due to that Intel went. तो we don't. मैं फिर से रिपीट करूंगा कि हमें ये कंपैरिजन ही नहीं करना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी वहां पे तब बन रही है जब उनकी जो जो इकोनॉमी है वो $35 ट्रिलियन की, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे आप ये कर रहे हो, और वहां पे इसका बायर है, उसका मार्केट है, उसके R&D स्ट्रेंथ है, हमारे पास वो सब नहीं है, तो हमें टेक के साथ क्यों compete करना है, हमें पैसा बनाना है, हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो हमें पैसा बनाने से फोकस करना चाहिए। तो पैसा कहाँ बनेगा, पैसा प्लेटफॉर्म्स में बनेगा, क्योंकि 140 करोड़ पब्लिक यहाँ पे है, यहाँ पे आप लिवरेज कर सकते हो। तो आप ये मत सोचिए कि टेक्नोलॉजी सेम चीज हमें करना है, ऐसा नहीं होता है, हमें वो करना है जो हमारे यहाँ के लिए बेटर है। तो हमारे यहाँ पे platform will become very big part of the Nifty 50 in next 10-15 years, and that is what we should play and that is how we should look at it. We should not compare at all with what US companies are doing. हम सेम टू सेम कर ही नहीं सकते कंपैरिजन, वो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, that is not the way we should think. एक क्वेश्चन विप्रो पे भी, या प्लीज कंटिन्यू। एक क्वेश्चन विप्रो पे भी है, तो विप्रो पे मेरे को लगता है कि इट हैज ऑलवेज मतलब इट कुड बी बॉट फॉर सम ट्रेडिंग गेन्स, बट इज नॉट ए स्ट्रक्चरल स्टोरी, मैनेजमेंट इज नॉट ग्रेट, तो मुझे नहीं लगता है कि, मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को बाय करना, बट टेक स्टॉक्स में क्या होता है, बहुत सस्ते हो जाते हैं तो एक 10-15-20% का मूव कभी भी आ सकता है। आई डोंट सी अ बिग मूव इन एनी ऑफ द लार्ज कैप नेम्स, सो वी आर प्लेइंग सम स्मॉल टेक नेम्स which are into AI and they are available at a very very reasonable price. We'll take a last question, Sandeep ji. So, Indian equities have underperformed emerging markets peers in 2025, as we has also discussed this, but remains a structural outperformer over 5 to 7 years. How do you balance short-term valuation headwinds versus long-term tailwinds in portfolio construction? बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। हम ये नहीं कह सकते कि हम अगर मार्केट 10% गिरेगा तो हम नहीं गिरेंगे, वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आप पोर्टफोलियो में ऐसा कोई कुछ अलग नहीं खरीद सकते। हम वो अवॉइड करते हैं जहां हमें वैल्यूएशन ज्यादा लगती है, हमें रिस्क लगता है, वो हम हर समय देख के करते हैं, पर उसके बाद भी मार्केट के ही हम सबसेट हैं। वी विल ऑल्सो डू वेल व्हेन मार्केट्स डू वेल, वी विल ऑल्सो नॉट डू वेल व्हेन मार्केट्स डोंट डू वेल, बट we will definitely, we are professionals, we are 24 hours looking at it. So ये जो बिजनेस है ना, ये इसी तरह से है कि आप ड्राइवर को ट्रैफिक वाले या रूल्स क्यों है कि उसे फोन पे बात नहीं करनी है गाड़ी चलाते समय, वो इसलिए है क्योंकि आप थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर नहीं कर सकते, नहीं तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी तरह से ये बिजनेस है, हालांकि इस चीज को लोग समझते नहीं है। इसमें भी अगर हम अपने चेयर भी नहीं छोड़ सकते, जबकि हम कोई ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हम कोई रेगुलर बाइज, हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, हमारी रिसर्च टीम पूरे दिन काम करते है, उसके बाद भी हम स्टॉक्स को देखते हैं, क्योंकि आज जैसे केन्स टेक्नोलॉजी में सीईओ ने अचानक से रिजाइन कर दिया, कुछ भी हो सकता है तो ये फुल टाइम फोकस जॉब है, ये इतना आसान नहीं है। तो हम यही बोलेंगे कि हम पूरा ध्यान रखते हैं, हमारा खुद का स्किन इन द गेम है, और हम जितना अच्छे तरह से कर सकते हैं मैनेज उतनी कोशिश करते हैं, एंड वी आर कैपेबल ऑफ मैनेजिंग इट इन अ गुड वे, एंड वी विल डिलीवर दैट कैपेबिलिटी, यू विल सी दोज रिजल्ट्स। Last 1 year has been tough for everyone, but we will definitely be big gainers as soon as it turns around. So I think हमने 6 बजे से ज्यादा समय ले लिया, तो we should close. एंड आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद शाम को फ्राइडे को समय निकालने के लिए। थैंक्स वंस अगेन फॉर अटेंडिंग द वेबिनार। Okay, so that brings us to the end of today's webinar.
We sincerely appreciate your participation and hope you found the session insightful. Wishing you a wonderful day ahead.